ایس پی صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا تھا آپ کے بیان سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ خود آپ نے اپنے بیان میں یہ اعتراف کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ رشوت کی ترغیب آپ نے خود اسے دی تھی۔ اس کا سبب خواہ کچھ بھی ہو، بہرحال رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں ہی قانون کی نظر میں جرم ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا یہ تحریری بیان پڑھ کر ایس پی صاحب اپنا یہ حکم واپس لے لیں اور آپ کو رہا نہ کیا جائے۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں اپنی تحریری بیان پر دستخط کر چکا تھا۔ ایس ایچ او نے سب انسپکٹر سے وہ بیان لے لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزاد مؤدب ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اس معاملات میں حمزاد کی مداخلت نہیں چاہتا تھا، خواہ ایس پی مجھے رہا کرے یا نہ کرے، حالات کچھ بھی رہے ہوں، مجرم بہرحال میں بھی تھا۔ میں نے رشوت دینے کی اسے ترغیب دی تھی اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا تاکہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ میں یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ نیا ایس ایچ او سراج الدین غیر ضروری طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ بھی بہرحال پولیس ہی کے محکمے سے تعلق رکھتا تھا اور ملک فیروز الدین ہی کا بھائی بند معلوم ہوتا تھا، ورنہ خواہ مخواہ اپنی قابلیت نہ چھاڑتا۔ پھر جب تک وہ واپس نہ آ گیا میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا اور اس سپاہی کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی حوالات کے دروازے پر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاہی سے کہا، انہیں لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ میرے لیے ایس ایچ او کا یہ حکم غیر متوقع تھا، اسی لیے چونک اٹھا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا ایس پی صاحب نے اپنے احکام واپس لے لیے؟ جی نہیں۔ ایس ایچ او اور سراج الدین آگے بڑھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دراصل ایس پی صاحب اس وقت اپنے کمرے میں نہیں ہیں، شاید ہیڈ آفس گئے ہیں۔ جب تک وہ برادرم سراج الدین، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تم گویا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مجھے حوالات میں بند کرا رہے ہو، یہی بات ہے نا؟ میرے چبھتے ہوئے لہجے نے اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار پیدا کر دیے۔ شیخ صاحب، آپ غالباً میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دراصل قانون تو قانون ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر انصاف فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ وہ قانون کے بارے میں اپنے ضروری اور غیر ضروری معلومات کا اظہار کرتا رہا اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو پھر میں بھی غصے میں آ گیا۔ اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا، میں کوشش کے باوجود اپنی رگِ شرارت کو پھڑک اٹھنے سے باز نہ رکھ سکا۔ میں نے اسے شرماتے لے جاتے دیکھ کر ایک دم کہہ دیا، بس تو پیارے تم مرغا بن جاؤ۔ جی، اس نے منہ پھاڑ دیا۔ ہاں، تمہارا مرغا بننا بہت ضروری ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے دوران خون سر کی طرف ہو جاتا ہے جس سے عقل بڑھتی اور آنکھیں روشن ہوتی رہتی ہیں، پھر تم پر قابلیت کے دورے نہیں پڑا کریں گے، بلکہ مستقبل قابلیت تمہاری کھوپڑی میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ سمجھ گئے نا تم؟ اب وہ حیرت کے لمحے سے نکل چکا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ دیکھیے شیخ صاحب، میں آپ کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میرے ماتحت کے سامنے میری عزت سے کھیلنے لگیں۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی، مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں بدستور اسے گھسیٹتا رہا۔ تم مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہو۔ جہاں تک مجھے علم ہے کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید تمہاری عزت کھلونا نہیں اور نہ ہی کوئی میں بچہ ہوں کہ اس سے کھیلنا چاہوں گا۔ میں نے محاورن عرض کیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے اور بھی مضحکہ خیز معلوم ہونے لگا۔ اچھا، تو محاورتاً بولنا بھی آتا ہے؟ تمہیں کمال ہے۔ تمہاری صورت دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تم اتنے قابل ہو گئے ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ مطلب یہ کہ چغد لگتے ہو صورت سے۔ یہ میرا گویا آخری حربہ تھا۔ پھر وہ بے قابو ہو گیا
और मुझे मायूसी नहीं हुई। बस बहुत हो गया। वो एकदम अपनी असलियत पर आ गया। वो खौल उतर गया जो उसने वक्ती तौर पर अपने ऊपर चढ़ा लिया था। मैं अब एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसने मेज़ पर एक तरफ रखा हुआ अपना बैत उठाकर आलमे जोश से ज़ोर से मेज़ पर मारा। शायद मुझे भी मलक फ़िरोज़ुद्दीन समझ रहे हो। तुम्हें क्या यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर सभी मलक फ़िरोज़ बन जाते हैं? मैंने पुरस्कून आवाज़ में कहा। फिर सख्त लहजे में बोला, मेरे पास शराफत का जवाब शराफत और कमीनगी का जवाब कमीनगी होता है। समझे मियाँ सिराजुद्दीन, जब एसपी मेरी रिहाई का हुक्म दे चुका है तो तुम दरमियान में अपने इख्तियारात नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले कौन होते हो? 2 मिनट में दिमाग के सारे कीड़े झाड़ देता हूँ। अगर तुम इज्जत के साथ मुझे यहाँ बिठाते और कहते कि जब तक तुम्हारा एसपी ना आ जाए मैं थाने से ना जाऊँ तो और बात थी, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही फैलने लगे। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में मुझे तुम्हारा ये फ़ैसला किस तरह कबूल होता कि हवालात में दोबारा बंद कर दिया जाऊं। तो तुम मेरे फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हो। वो मुझे घूर कर बोला, यानी मुझे बेहसियत एसएचओ ये हक नहीं कि किसी मुजरम को जो इकबाल जुर्म भी कर चुका है हवालात में बंद कर सकूं। तुम्हें फिर अपनी काबिलियत का हैज़ा होने लगा। अहमक आदमी, कोई फ़ैसला करने से पहले जुर्म की नोयत देखी जाती है और ये देखना अदालत का काम है, तुम ऐसे टटपुंजियों का नहीं। उसकी कुव्वत बर्दाश्त आखिर जवाब दे गई। एक तो यही कम न था कि वहाँ सब इंस्पेक्टर मौजूद था। उस पर सितम यह हुआ कि वहाँ सिपाही की मौजूदगी का ख्याल उसे एकदम आ गया। मेरी बजाय वो उसकी तरफ देख कर धाड़ा, ले जाओ इस अहमक के पट्टे को, बंद कर दो हवालात में। मैं भी देखता हूँ कि कितने कसबल हैं इसमें। पछताओगे बरखुरदार। ये कहते हुए मैंने हमजाद को इशारा कर दिया। अभी यहाँ तमाशा शुरू हो जाएगा। जब तक तुम्हारा एसपी अपना हुक्म वापस नहीं लेगा मैं हरगिज़ हवालात में बंद नहीं हूँगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो कोशिश करके देख लो। मेरा इशारा पाते ही हमजाद फौरन हरकत में आ गया। डरता झिझकता हुआ सिपाही मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम रुक गया। सब इंस्पेक्टर शाहिद फिजा में तनाव महसूस करते ही एकदम अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एसएचओ का चेहरा शदीद गुस्से के सबब सुर्ख हो चुका था। उसकी नज़रें सिपाही पर जमी हुई थी। सिपाही ने जैसे ही रुका वो चीख उठा, जल्दी कर, रुक क्यों गया है? फिर वह सब इंस्पेक्टर की तरफ पलटा। अगर तुम खड़े हुए क्या तमाशा देख रहे हो? एक आदमी को काबू में नहीं कर सकते तुम? यस सर। सब इंस्पेक्टर को गड़बड़ाकर जल्दी से मेरी तरफ लपका। फिर गालबन उसे गुज़श्ता एसएचओ मलिक फ़िरोज़ुद्दीन के साथ पेश आने वाला वाक़या याद आ गया और वो खुद ही ठटक कर रुक गया। मैं इत्मीनान के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था, बल्कि अब टांगे भी फैला चुका था, जैसे इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक़ ही ना हो। हमजाद की मौजूदगी में भला मुझे फ़िक्र भी क्या होती। मैं देख रहा था कि वह पूरी तरह चौकन्ना है। फिर इससे पहले कि एसएचओ मज़ीद तुरम खानी दिखाता, सूरत हाल गैर मुतवक्का तौर पर बदल गई। एसपी कारवकर का उर्दली कमरे में दाखिल हुआ और वो भी बंगाली था। साहब बुलाता है, उसने गोया तलबी का हुक्म सुनाया। जिस तरह गुब्बारे में भरी हुई हवा एकदम निकल जाती है, वही हाल एसएचओ का हुआ। उधर उर्दली हुक्म सुनाकर गया, उधर एसएचओ अपनी कुर्सी से उठा। मैं आता हूँ अभी, उसने सब इंस्पेक्टर को मुखातब किया। फिर खोखली सी आवाज़ में बोला, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ। उसने मेरी तरफ निगाह उठाई। उसने दानिस्ता फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया था। समझ गए तुम? सब इंस्पेक्टर उसका इशारा समझा या नहीं, मगर उसने ज़ोर से गर्दन हिलाकर यस सर कहा। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते बगैर मुड़े एसएचओ अपने इशारे की वजाहत भी ज़रूरी समझी। बोला, इसे मेरे लौटने तक यहाँ रोकना है। एक बार फिर गरीब इंस्पेक्टर को यस सर की हांग लगाना पड़ी। एसएचओ कमरे से निकल गया। अपनी तो हर तरफ मुसीबत है। सब इंस्पेक्टर बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। फिर शायद उसे सिपाही का ख्याल आ गया जो अभी तक किसी मुजस्मे की तरह अपनी जगह खड़ा था। ए तुम दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। सुना नहीं साहब क्या हुक्म दे कर गए हैं?
सिपाही किसी चाबी भरे हुए खिलौने की तरह बाउ टर्न हुआ और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे बयान और एसएचओ की हमाकत से मामला बेसबब तूल खींच रहा था और अभी मुझे बहुत से काम थे। अब थाने और पुलिस के चक्करों से मेरा जी भर चुका था। ये चक्कर जितनी जल्द ख़त्म हो जाता अच्छा था। नया एसएचओ भी जाहिर है कि अब मेरे हक में नहीं रहा था। वो एसपी कोई नई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता। वो इस कोशिश में कामयाब होता या ना होता, मेरा वक्त ज़रूर बर्बाद करता। मैंने चंद ही लम्हों में एक फ़ैसला कर लिया और सब इंस्पेक्टर और सिपाही के बस में नहीं था कि मुझे जाने से रोका जा सकता। मैं अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसी के साथ हमजाद को साथ आने का इशारा किया। मुझे कुर्सी से उठते देखकर सब इंस्पेक्टर बौखला गया और ख़ुद भी खड़ा होकर बोला, जनाब आप तशरीफ़ रखिए। बको मत, मैंने उसे डांट दिया। तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। मगर जनाब सुने तो सही। अजीब चपड़ू, तुम अगर मगर किए जा रहे हो। कह तो दिया है कि तुम्हें तोप दुप नहीं किया जाएगा। मैं थाने से भाग नहीं रहा, तुम्हारे एसपी के पास जा रहा हूँ, ये कहकर मैं आगे बढ़ा। फिर तो ठीक है जनाब, ये कहकर उसने सिपाही को बुलंद आवाज़ में मुखातब किया, जनाब को एसपी के कमरे तक छोड़ आओ। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, ज़्यादा होशियारी छांटने की ज़रूरत नहीं। मुझे एसपी का कमरा मालूम है, खुद अकेला वहाँ तक चला जाऊँगा। फिर सिपाही तस्वीर बना दरवाजे पर खड़ा रह गया और मैं उसके करीब से गुजरकर बाहर आ गया। सिपाही को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोक सकता। जल्दी में तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ थाने के अकबी हिस्से में पहुंच गया। मेरा हमजाद मेरे साथ था। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि जल्द अज जल्द इस चक्कर से निकलना है। तुम इस सिलसिले में जो चाहो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर कानून के मामले में मुदाखलत ना करना। एसपी कमरे के दरवाजे पर मुस्तैद कांस्टेबल खड़ा था। हमजाद लपक कर उसके सामने आ गया। मैं इस दौरान में अंदर दाखिल हो चुका था। यकीन करें सर कि वो 10 नंबरी है। और एसपी के कमरे में दाखिल होते ही मैंने नए एसएचओ की आवाज़ सुनी। मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर उसकी आवाज़ को ब्रेक लग गया था। 10 नंबरी हाजिर है जनाब, मैंने एसपी के करीब अपने हमजाद को देख कर कहा। तुम बकवास करता है। एसपी एकदम एसएचओ पर गर्म हो गया। फिर एसपी ने अपनी टूटी फूटी उर्दू में नए एसएचओ के से जवाब तलब किया कि जब मैंने रिहाई का हुक्म दिया था तो फिर तुम कौन होते हो जो शेख करामत को रिहा नहीं किया। एसएचओ सिराजुद्दीन लाख अपनी सफाई पेश करता रहा, मगर एसपी ने उसकी एक ना सुनी। एसपी ने मेरी तहरीरी बयान भी मंगवा लिया और उसे पढ़ने के बाद गोया अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि शेख करामत का ये बयान सदाकत पर मबनी है। उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, यहाँ तक कि हालात से मजबूर होकर रिश्वत देने का भी एतराफ़ किया है। कानून अंधा नहीं होता, जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है। वो हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करके और सही नतीजे पर पहुँचने के बाद किसी पर लागू होता है। इस केस में ये वाज़ेह है कि शेख करामत को रिश्वत देने पर बहरहाल मजबूर किया गया। उसके सिवा शेख करामत के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए कानून की निगाह में असल मुजरम शेख करामत नहीं, एसएचओ मलिक फ़रोज़ है, लेकिन उसका हतमी फ़ैसला अदालत करेगी। इन हालात में पुलिस के पास कोई जवाज़ नहीं कि शेख करामत को ज़ेर हिरासत रखे। हाँ, शेख करामत पर यह पाबंदी ज़रूर आयद की जा सकती है कि वो पुलिस को इत्तला दिए बगैर चालगाम से कहीं ना जाएं, और ये कि अगर मौजूदा क़यामगाह छोड़ें तो पुलिस को नए पते से आगाह ज़रूर कर दें। उसकी वजह ये कि इस केस के अदालत में जाने के बाद उन्हें भी अदालत में हाज़िर होना पड़ेगा। जो कुछ एसपी ने ज़ुबानी कहा उसे तहरीर में भी ले आया गया, क्योंकि इसी बुनियाद पर अदालत में केस पेश किया जाना था। उसके साथ नए एसएचओ सिराजुद्दीन से भी तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया गया। उसने मेरे सिलसिले में तामील हुक्म क्यों नहीं की और गैरी ज़रूर तौर पर मुझे थाने में क्यों रोका। मेरे नज़दीक उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी थी। उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। मेरी तवक्का से कहीं पहले गुलू खलासी हो गई और उसमें यकीनन हमजाद का हाथ था। उसने मेरी हदायत पर पूरा अमल किया। एसपी के जहन पर पूरी तरह मुसल्लत होने के बावजूद उसने कानून में मुदाखलत नहीं की। एसपी ने जो कुछ कहा था
खिलाफ कानून नहीं था। मैं एसपी का शुक्रिया अदा करके उसके कमरे से निकल आया। थाने से निकलते निकलते असर का वक़्त हो गया। मैंने करीबी मस्जिद में असर की नमाज पढ़ी और फिर अपनी तबाह हाल कोठी की तरफ रवाना हो गया। फिलहाल मेरे लिए वही जाए पनाह थी। मैं अपने हमजाद से बिछड़कर रेजा रेजा बिखर गया था और अब मुझे अपना बिखरा हुआ वजूद समेटना था। मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा था, न घर, न दर, न इज्जत, न वकार, न पैसा, न शोहरत, नेक नामी, न शाद कामी। मुझे ज़्यादा की हवस पहले कभी रही हो तो रही हो, मगर अब नहीं थी। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर लिया था। आदमी का बातन असर यकीनन उसके ज़ाहरी पर भी मुरतब होता है। शान व शौकत, नमूदो नुमाइश क्या धरा था इसमें। ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया। जिसे घर कहते हैं वो मैंने कभी नहीं बनाया। घर का तस्वर मेरे जहन में सिर्फ दरो दीवार नहीं। ये मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि अमूमन लोग दरो दीवार को घर कह देते हैं। दिल में भी यही एक फांस थी जो कभी कभी चुभने लगती थी। उस रोज़ अपनी कोठी की तरफ जाते हुए मैं यही ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, जिन्हें मैंने दानिस्ता अपने जहन से झटक दिया। वो मेरी कोठी का मलबा नहीं, मेरी हसरतों का मलबा था, जिसके दरमियान से होकर मैं अपने कमरे तक पहुंचा। हमजाद को मैंने थाने से निकलते ही रुखसत कर दिया था। अब फिर तलब कर लिया। तुम वो जड़ी बूटियां और पत्तियां ले आए जिनका सफूफ बनाना है? मैंने उससे पूछा। जी हाँ, ये लीजिए। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे मालूम था कि यहाँ आकर सबसे पहले आपको इन्हीं का ख्याल आएगा। मैंने दोनों चीज़ें इससे ले लीं। फिर कुछ सोचकर बोला, सफूफ भी तुम ही बना लो और सोते वक़्त मुझे उसकी एक खुराक खिला देना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर मैं मैदे के सरतान से निजात हासिल कर लूँगा। इंशाअल्लाह कहते हुए हमजाद ने मुझसे वो जड़ी बूटियाँ और पत्तियाँ वापस ले लीं और बोला, मैं 7 दिन के लिए अलग अलग पुड़ियाँ बनाकर रख दूँगा। आप मुतमिन रहिए। तुमसे एक बात और पूछना थी। कुछ देर बाद मैंने मज़ीद कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये मुमकिन भी है या नहीं, फिर भी आप कहें तो सही। वो मुझे खामोश देख कर बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा बातन बदल चुका है, मगर ज़ाहिर वही है। मुझे अपने इस मकरूह चेहरे से भी घिन महसूस होती है, जिस पर गुनाह की मुतअद्दिद तहरीरें नक्श हो चुकी हैं। किसी और को ये महसूस होता हो कि ना होता हो, लेकिन मुझे अपने चेहरे और बकिया जिस्म के दरमियान ये फ़र्क बहुत ज़्यादा मालूम होता है। तुम मेरे हमजाद हो, इसलिए यकीनन मेरे जज्बात को समझ सकते हो। जाने क्यों कभी पहले मुझे ये ख्याल नहीं आया। कतई तौर पर यह चेहरा बदलना तो मुमकिन नहीं। हाँ, इस पर से बुढ़ापे के आसार ख़त्म किए जा सकते हैं। जिल्द का ढीलापन, स्याही, झुर्रियाँ, खुरदरापन और पसमुर्तगी दूर हो जाएगी, मगर चेहरे के बुनियादी खतूत वही रहेंगे जो दरअसल हैं। हमजाद मुझे उसकी तफसील से समझाने लगा। यूँ समझे कि आपका चेहरा एक जवान शख्स का चेहरा नज़र आने लगेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं। अगर पहले कभी ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते तो इसकी तकमील हो जाती। ज़िंदगी के हंगामों और हवस ने इतनी मोहलत ही कहाँ दी थी कि मैं ये सोच सकता। मैंने ठंडा सांस भरा। बस चंद लम्हे आपको तकलीफ़ होगी, उसके बाद आप गोया अहदे जवानी में लौट जाएंगे। हुक्म दें तो मैं करीब आऊँ। हमजाद बोला। ठहरो, मैंने उसे कहा, मैं आखिरी बार यह चेहरा देख लूँ, जो कुछ देर बाद मेरे लिए अजनबी बन जाएगा। ये कहकर मैं सहरी से उठा और मेज़ पर रखा हुआ आईना उठा लिया। आईने में अपना चेहरा देखते हुए इस वक्त मेरे एहसासात बहुत अजीब से थे। वो चेहरा मुझे अपना चेहरा मालूम नहीं हो रहा था। मैंने हाथ से आईना रख दिया और फिर मसहरी पर आ बैठा। आ जाओ और तकलीफ़ की परवाह ना करो। गुज़श्ता 40 दिन के दौरान मैं जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुका हूँ, बहरहाल ये तकलीफ़ उससे ज़्यादा नहीं होगी। हमजाद मेरे करीब आकर आ गया और बोला, आंखें बंद कर लीजिए। मैं लेट गया और आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हमजाद मुझ पर झुका हो। उसके बाद मैंने एक
तपश सी महसूस की। फिर यूं लगा जैसे मेरे चेहरे की जिल्द जगह जगह से फटने लगी हो। तकलीफ शुरू हो गई, मगर मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मैं एक हैरतनाक तजर्बे से गुजर रहा था। बरकी रौ से मेरी जिल्द में दौड़ रही थी। ये सिर्फ चंद लम्हे थे जो तकलीफ की वजह से मुझे ज़्यादा महसूस हुए। फिर एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कोई जख्मों पर मरहम रख रहा हो। बाद में ये एहसास भी जाता रहा। ये आईना लीजिए, मुझे हमजाद की आवाज़ आई। आंखें खोलकर अपना चेहरा देख लीजिए। आईने में अपना चेहरा देखने से पहले आंखें खोलते हैं, मेरे लिए पहला जहनी झटका हमजाद का बदला हुआ चेहरा था। मैं एकदम उठकर बैठ गया और आईना देखने से पहले अपनी हैरत का अजहार किया। ये तुम्हारा चेहरा, ये कैसे बदल गया? वो मुस्कुराया। मैं आप ही का तो जिस्म लतीफ़ हूँ, आप ही का अक्स, आप ही का आईना। तो ये तो होना ही था। जब आपका चेहरा बदल गया तो फिर मेरा चेहरा क्यों ना बदलता? मेरा हमजाद ठीक ही कह रहा था। उसका चेहरा देखकर मैंने जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया था। बधाइयों, हाँ बधाइयों, मेरी जवानी में कैद में तो गुजरी थी, और अब वही जवान चेहरा, मेरा बिछड़ा हुआ मासूम चेहरा मुझे आईने में दोबारा से नज़र आ रहा था, जिस पर गुनाह की स्याही नहीं थी। इससे मुझे बड़ी तकवीत, रूहानी तकवीत महसूस हुई। अब मेरा ज़ाहिर भी बदल गया था। मेरे चेहरे और बकिया जिस्म के दरमियान जो नुमाया फ़र्क था अब ख़त्म हो चुका था। वक़्त जैसे पीछे की तरफ लौट गया था। मुझे बदायूं याद आ रहा था, मीरठ याद आ रहा था। दिल्ली के गली कूचे मेरी आंखों में घूम रहे थे। मैं ना जाने कब तक इन्हीं ख्यालात में खोया रहा। हमजाद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो मुझसे रुखसत की इजाज़त मांग रहा था। ना जाओ, अभी ना जाओ, और मुझे सोचने दो, मैं जज्बाती लहजे में बोला। मुझे सोचते दो कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ और क्यों। और सुनो, इस वक्त तक करीब ही रहा करो जब तक मैं खुद तुम्हें रुखसत ना कर दिया करूँ। बेहतर है, उसने सआदतमंदी से कहा। बदले हुए चेहरे ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं हमजाद की बजाय जैसे अपने आप से बातें कर रहा था। अब इन वाक़यात को बरसों गुजर चुके हैं। अगर मैं वापस भी चला गया तो शायद मेरा माजी मेरा पीछा नहीं करेगा। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था, वो फ़िज़ा और थी, और अब शायद, मगर ख्याल की एक और लहर ने मेरे तखलील की रो मुंतक़े कर दी। मेरी फौरी तौर वापसी मुमकिन नहीं थी। अभी मुझे बहुत से मसले निपटाना थे, और उनमें से सबसे अहम मसला सरिता की बाजियाबी का था। शबू को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। सरिता को उसके रहमो करम पर छोड़ जाना खुद गर्जी होती। हमजाद एक तरफ मुअद्दब खड़ा था। मेरी निगाह उसकी तरफ उठी तो मैं जैसे ख्यालों की दुनिया से लौट आया। सुनो, मैंने हमजाद को मुखातब किया। इस वक्त पहला मसला सकूनत का है। मैं उस खंडर में नहीं रह सकता। यहीं इस महल्ले में कोई खाली मकान तलाश कर लो। किराए का झंझट ना हो तो बेहतर है। मैं देखता हूँ कितनी रकम बाकी रह गई है। ये कहता हुआ मैं उठा। अलमारी खोल कर देखी तो चंद 100 रुपये पड़े थे। हमजाद को मेरी मुश्किल समझने में देर नहीं लगी। कुछ ही देर बाद मेरे सामने मेज़ पर नोटों की थैलियाँ लगी हुई पड़ी थी, जिन्हें मैंने एक टैची में भर लिया, और हमजाद मकान की तलाश में रवाना हो गया। ये मेरा तजर्बा था कि हमजाद के लिए कभी कोई मुश्किल नहीं थी। वो जल्द ही लौट आया और आते ही बोला, यहाँ से सिर्फ 2 फरलांग के फासले पर एक मकान खाली है। मालिक मकान यहाँ से मगरबी पाकिस्तान के एक शहर कराची मुंतकिल होना चाहता है। उसकी सकूनत अपने बड़े भाई के घर में है। मकान उसने इसीलिए खाली कर दिया है कि जब कोई अच्छा ग्राहक मिले तो उसे बेच दे। आप चाहें तो पहले चलकर देख लें। तुमने देख लिया काफ़ी है, बस सर झुकाने की जगह चाहिए। तो मुझे मालिक मकान के पास ले चलो। अभी मेरी बात पूरी हुई थी कि मगरिब की अजान हो गई। मैंने हमजाद से कहा कि नमाज पढ़कर अभी चलता हूँ। ये मसला आज ही हल हो जाए तो बेहतर है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं हमजाद के हमरा मालिक मकान के बड़े भाई के घर तक पहुंच गया। वो बंदा बहार का था, छेड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक कस्बे का रहना वाला आदमी। खुश अखलाक था, मगर थोड़ा सा लालची भी था। इस वजह से उसका मकान नहीं बिक सका था। खाली मकान करीब ही था। उसने मुझे दिखलाया और मैंने पसंद कर लिया। अब आप ही बताएं साहब, 2 मंजिला मकान है,
60,000 कोई ज़्यादा तो नहीं है। मुझे अपनी दांस में हमवार करने लगा। ठीक है, मगर मुझे फ़ौरन कब्ज़ा चाहिए, मैंने बात को मुख्तसर करने की खातिर कहा। मकान तो इसी वजह से खाली पड़ा है साहब। मामला बनते देखकर वो जल्दी से बोला, आप अभी आ जाएं। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, बात बस। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सौदा नकद होगा साहब। उसने दिल की बात कह दी। मंजूर है, मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर बोला, आपके पास इसके कागजात हैं? बिल्कुल साहब, हर काम पक्का है। मकान की रजिस्ट्री वगैरह कल सुबह हो जाएगी। मैं तुम्हें रकम आज ही अदा कर देता हूँ, तुम मकान के कागजात दे दो। चलें तो फिर। और ये रखें मकान की चाबियाँ। उसने मुझ पर एतमाद का इजहार करने की खातिर कहा। नहीं, मैं पहले रकम ले आऊं, फिर चाबियां लूंगा। ये कहता हुआ मैं उसके साथ खाली मकान से बाहर आ गया। मैं बेचैनी से आपका इंतज़ार करूंगा। वो चलते चलते दोबारा बोला, बस अभी आया। ये कहकर मैं अपनी कोठी की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ने लगा। उसके बाद इशा से पहले पहले मेरा सारा सामान नए मकान में मुंतकिल हो चुका था। काठ कबाड़ मैंने वहीं पुरानी हवेली के खंडर में छोड़ दिया। इस दौरान में मेरा पुराना मुलाजिम अरशाद अली भी आ टपका था। हवेली को खंडर बने देखकर उसने गिरिया करने के लिए इब्तदा ही की थी कि मैंने उसे रोक दिया। हमजाद के अलावा छोटा मोटा सामान मुंतकिल करने में उसने भी तेज़ी दिखाई थी, और जो सामान बचा भी किया था, सामान में देगर ज़रूरी अशिया से ज़्यादा किताबें थी। अरशाद अली दिन में कई बार वहाँ चक्कर काट कर गया था और बल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। उसने मेरी बदली हुई सीरत सूरत को भी बड़ी हैरत से देखा, मगर जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसे यकीन करना ही पड़ा कि मैं शेख करामत हूँ। उसे मेरे वजीफ़ा कामयाब हो जाने पर बड़ी दिली खुशी थी। मेरे बदले हुए चेहरे को भी उसने वजीफ़े के खाते में डाल दिया था और मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। नए मकान की ऊपरी मंजिल को मैंने सकूनत के लिए मुंतखब किया। ऊपर सिर्फ 2 कमरे थे, जिनमें से एक को मैंने निशस्त गाह और दूसरे को ख्वाब गाह बना लिया। निचली मंजिल पर 3 कमरे थे, उनमें से एक को लाइब्रेरी, दूसरों को मेहमानों के लिए और तीसरा कमरा अरशाद अली के लिए मखसूस कर दिया। बहुत कम वक़्त में हमजाद ने इस मकान का हुलिया बदल दिया। अब उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि घंटा भर पहले कोई इसमें मुंतकिल हुआ है। ऊपरी मंजिल पर दोनों कमरों के सामने खुली छत पर मंडेरों के किनारे गमले लगे हुए थे और उनमें खुशबूदार फूल महक रहे थे। सारा घर खूबसूरत सामान से भरा हुआ था। अरशाद अली बार बार मेरे पास आकर अपनी हैरत और खुशी का इजहार करता और कभी कहता, मेहमानों वाले कमरे में जाने कहाँ से नई मसहरी और नई मेज़ कुर्सियाँ आ गई हैं। कभी हाँफता हुआ आता और बताता, जनाब जाने कहाँ से ज़रा फर्नीचर चला आ रहा है नया। मेरी तो अकल हैरान है। मैं ज़रा की ज़रा बाहर का चक्कर लगाने गया था कि देखूं पास पड़ोस वाले कैसे हैं। लौटा तो मेरे कमरा सामान से भरा पड़ा था और बावर्ची खाना भी, और तो गुस्ल खाने में लोटा बाल्टी तो क्या साबन भी देखा है मैंने। कमाल हो रहा है जनाब, सब अल्लाह का करम मालूम होता है। जिसने ले लिया था दोबारा दे दिया। वो खुद ही तवज्जात तलाश कर लेता था, इसलिए मुझे मज़ीद समझाने की क्या ज़रूरत थी। ज़ाहिर है कि मैं उसे हमजाद के बारे में तो बता नहीं सकता था कि ये सब कारस्तानियाँ उसी की हैं। हमजाद से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नए मकान को रहने के काबिल बना दो, और वह मेरे मजाज की ये खूबी से वाकिफ़ था। उसने वही किया जो मैंने कहा। वो रात मैंने नए मकान में सकून और इत्मीनान के साथ सो कर गुजार दी। सुबह मकान की रजिस्ट्री भी करा ली और थाने जाकर भी अपना नया पता लिखवा दिया। थाने वाले भी मेरी बदली हुई शक्ल सूरत देख कर हैरान हुए, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत ना हुई कि मुझे शेख करामत तस्लीम करने से इनकार कर देता। गुज़श्ता रोज़ उन्हें खालसन सबक मिल चुका था। वो मुझसे डरे डरे और सहमे सहमे से थे। थाने से लौटते हुए मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ का ख्याल आया। घर आते ही मैंने अरशाद अली को साथ लिया और डॉक्टर से मिलने रवाना हो गया। अरशाद अली को मैंने इसीलिए अपने साथ लिया ताकि वह मुझे सही पते पर पहुंचा दे। वहां पहुंचकर मैंने अरशाद अली को वापस कर दिया। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। एक बच्ची बाहर आई। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब हैं? अंकल से मिलना है, इम्तियाज़ अंकल से। बच्ची ने तस्दीक चाही। जी हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? बच्ची ने पूछा। शेख करामत। अंकल अपने कमरे में सो रहे हैं, अभी जगाती हूँ उन्हें।
इतनी देर तक सोते हैं तुम्हारे अंकल? सुबह की सैर करके आते हैं मेरे साथ और फिर सो जाते हैं, मगर मैं नहीं सोती। इस वक्त तक उठ जाते हैं, नहीं तो मैं जगा देती हूँ। अच्छा, मैं अभी आई, ये कहकर बच्ची अंदर चली गई। उसकी बातों में बड़ा भोलपन था। मैं समझ चुका था कि वो डॉक्टर इम्तियाज़ की भतीजी है। थोड़ी देर बाद बच्ची भागती हुई आई और मुझे निशस्त गाह में ले जाकर बैठा दिया। अंकल अभी हाथ मुंह धो रहे हैं, उसने बताया। फिर बोली, चाय पियेंगे आप? बनवा कर लाऊं अम्मी से? नहीं बेटा शुक्रिया, आप बस बैठी रहें। जी नहीं जनाब, मैं नहीं बैठ सकती आपके पास। क्यों? अबू कहते हैं कि पहले काम फिर बातें। क्या काम है आपको इस वक्त? स्कूल से आकर 2 पेज लिखती हूँ अंग्रेज़ी के। जिस दिन नहीं लिखती ना तो इम्तियाज़ अंकल यूं आंखें निकालने लगते हैं। उसने इस तरह आंखें निकाल कर दिखाई कि मुझे हंसी आ गई और मैं बोला, अच्छा तो फिर जाकर लिखो। बच्ची चली गई तो मैं सोचने लगा, डॉक्टर इम्तियाज़ यकीनन बेरोज़गार है। गालबन उसकी वजह यह है कि वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वरना पैसे पास पले होते तो वो अपना कोई छोटा सा क्लिनिक खोल कर बैठ जाता। मेरे ख्याल में वो एक ज़हीन और बासलाहियत नौजवान था। अगर उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता तो यकीनन कुछ कर दिखाता। ऐसे नौजवान मुल्क व कौम का असासा होते हैं, लेकिन ज़माने की तेज़ रफ्तारी और ख़ुद गर्जी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। अस्सलामुअलैकुम शेख साहब। डॉक्टर इम्तियाज़ का फ़िक्रा अधूरा रह गया। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। आपने अपना नाम? बैठे, मैंने मुस्कुराकर कहा। यकीन कर लें मैं शेख करामत ही हूँ। आवाज़ तो अब आपकी ही मालूम होती है, मगर वो अभी तक मेरे सामने खड़ा हैरत से मुझे देख रहा था। और मैं भी वही हूँ। अगर मज़ीद यकीन दिलाने की ज़रूरत हो तो परसों हवालात में मेरे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो दोहरा दूँ। लेकिन ये मुमकिन, ये किस तरह हो सकता है? उसकी आवाज़ में हैरत के बावजूद अब शिकस्त का अंसर शामिल था। शायद आप भूल गए हैं, मैंने आपसे कहा था कि अकीदे में बड़ी कुव्वत होती है। जी हाँ, मुझे याद है। ये कहता हुआ वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं इसलिए आपसे मिलने आया था कि आप खुद अपनी आंखों से खुदा की कुदरत का तमाशा देख लें। खुदा कादरे मतलक है, वो मुर्दा जिस्म में जान डाल सकता है। मेरे यकीन को आप अमली सूरत में देख रहे हैं कि मैं आपके सामने जिंदा सलामत और तकरीबन सेहतमंद बैठा हूँ। सेहतमंद? अरे आप तो जवान हो गए हैं। ये एक नाकाबिल यकीन सी बात है, मगर मैं अपने मुशाहदे को किस तरह झुटला सकता हूँ? यकीन करें शेख साहब कि अभी तक मेरा जहन इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। उसकी वजह है कि मैंने पुरस्कून आवाज़ में कहा, हम इस हद तक मादा परस्त हो चुके हैं कि हर मामले में अक्ल ही को अपना रहनुमा बनाते हैं। अक्ल की अहमियत से मुझे भी इनकार नहीं, लेकिन मादराए अक्ल भी कुछ है जिसका कोई तवज्जीह मुमकिन नहीं। आप बजा फरमा रहे हैं, उसने मेरी बात की तस्दीक में कहा। हमारी अक्ल एक ख़ास हद तक हमारी रहनुमाई करती है, वरना इस कायनात में मुतअद्दिद ऐसे मज़ाहिर हैं कि उनका कोई अक्ली जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly